let's take two perspectives and then talk about what does mental health not mean, but what does mental health के factors क्या रहते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि there is poor mental health and then there is mental health, right? Or like good mental health. I don't know what it is. Clinically and then perhaps psychologically. Are there perhaps some benchmarks like pleasant disposition, good body, stable family life, and is there like a standard goal post that everyone should move to when it comes to mental health? मैम मैं तो क्लिनिकल पर जवाब दूंगा, ये मैम का क्वेश्चन है, पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड ऑल, आप बताइए इस बारे में. Good mental health, I'll always say something, you know, how we look at it in terms of physical health also. आपकी mental diet क्या है, क्या आप consume कर रहे हो? Reels. Yes. So your mental health depends on what you're watching, what you're consuming, what you're looking around, what you see. So that matters a lot. आपकी अपनी mental health को अगर आप देखते हो, and I feel a lot of times during COVID लोगों ने बहुत struggle करा, लोग बहुत पैनिक में जाते थे क्योंकि क्या देखते थे न्यूज़ पे पूरा टाइम कोविड बढ़ रहा है, इतने डेथ केसेस बढ़ रहे हैं, इतना टोल हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, नया वेरिएंट आ गया है. एंड वी ऑल सॉ हाउ आवर मेंटल हेल्थ वाज एट दैट पॉइंट इन टाइम. और वहाँ एक एडवाइजरी, आई थिंक हम लोगों का भी उस टाइम पर कुछ थोड़ा सा ट्रेनिंग हुआ था कि आप काउंसलिंग कैसे करोगे. उसमें यही था कि भैया सबको बता दो कि कम से कम देखें न्यूज़. सो व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, योर डाइट, व्हाट यू आर वाचिंग, व्हाट यू आर नॉट वाचिंग, आई थिंक दैट matters. And not only in terms of what you're consuming in a lot of different spheres, right? Consuming in terms of आपका घर का environment, आपका खुद का family dynamics क्या है, उसमें क्या consume कर रहे हो आप. I also feel a very important point जो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, and I think मेरे थेरेपी में भी इतनी बात उस बारे में नहीं हो पाती because that's not the work that we are doing, is also your mental strength training. हम कार्डियो करने जाते हैं तो हम अपनी मेंटल फैकल्टीज़ को कितना ट्रेन करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, हम नहीं करते. और आज मुझे लग रहा है एआई के बाद हमारी जो ये सोचने की क्षमता है वो और भी नीचे होती जा रही है. वी आर नॉट थिंकिंग, वी आर नॉट डूइंग न्यू थिंग्स, वी आर, आई डोंट थिंक इफ यू हैव टू राइट अ मैसेज टू समवन we will write it on our own. So what does mental strength training look like? Using your brain, doing something different. Puzzles करते हैं लोग. Okay. You know, something which involves and engages your mind to do new things. अब something as simple as hat है, hat में एक सी ऐड कर दो, क्या वर्ड बनेगा? Chat. एक और सी ऐड कर दो, क्या बनेगा? Hatch. Catch. Catch. So sorry. Yeah. So using your brain like that. Yeah, my brain is slow. Yeah. So that is something that we've stopped doing. We don't do mental strength training at all. और with all of this AI सब कुछ खत्म हो गया है. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. We don't use our brains. I've seen people, kids, Gen Z, हम कह रहे थे, कहाँ दिमाग यूज करने का टाइम कहाँ मिला है किसी को? कट कॉपी पेस्ट करो. Yeah, like creative problem solving requires sitting without a screen and thinking about something, even pacing around the room. Yeah. Yeah, which sort of, but you should. Yeah. So when it comes to mental health, again, I would like to make a differentiation between the clinical scenarios and subclinical. So if you talk about when I would look at the mental health from a clinical angle, again, I would repeat the same words. There has to be distress, there has to be impairment. But if somebody is not distressed or impaired, तो एटलीस्ट क्लिनिकल चीज़ हट गई. अब जैसे मैम बात कर रही हैं कि डेवलपिंग बेटर कोपिंग स्किल्स. आई गिव एन एग्जांपल. जैसे मान लीजिए से वी हैड एन आर्गुमेंट, राइट? अब उस आर्गुमेंट के बाद यू आर फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग बैड, राइट? उसको कैसे हैंडल करना है, दैट वुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, बट नॉट द क्लिनिकल पार्ट, राइट? बट वो आई थिंक और बड़ा एक एस्पेक्ट है कि how to navigate life in a better way, how to handle stressors, how to handle fights, how to remain motivated. तो ये सब एक और दूसरा बहुत बड़ा सा एस्पेक्ट आता है, नॉट ऑफ साइकेट्री बट मोर ऑफ साइकोलॉजी. उसमें जैसे मैम बातें कर रही हैं, मैम ने कॉग्निटिव टास्क की बात की. अच्छा, इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली मैम जो बोल रही हैं, इसका थोड़ा एविडेंस है कि जब हम ये करते हैं तो हमारे एल्जाइमर्स ये सब के चांसेस कम हो जाते हैं. तो व्हाट शी इज सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो ऐसे बोलने वाली बात नहीं है. बट वो हो गया कॉग्निटिव इंटेलिजेंस या कॉग्निशन की बात कर लीजिए. ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इमोशनल लेवल पे की जा सकती हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैम वुड टेल यू, है ना, पीपल लाइक मैम आर वेरी गुड इन टीचिंग दोज थिंग्स. सो वो सब चीज़ें. और इनफैक्ट सीबीटी मुझे लगता है, मतलब आई ऑल्सो लाइक सीबीटी अलॉट. आई डोंट प्रैक्टिस एज अ थेरेपिस्ट, बट सीबीटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, every single cognitive behavioral therapy, every single human being would get benefited by those principles. So you don't have to be a clinical patient. मतलब
अगर मुझे ये सब बातें पहले पता होती तो मैं ऐसे ही थेरेपिस्ट का चला गया होता अपने यंग एज में, बिकॉज इट मेक्स यू मोर इफेक्टिव ऑल्सो. Yeah. It's only about not about illness. We are very concerned about productivity, right? आप हम सबकी बुक्स के चेम्बर्स भरे रहते हैं प्रोडक्टिविटी से. आप सीबीटी की स्किल्स देखिए, सीबीटी की टेक्निक्स देखिए, दे टेल यू प्रोडक्टिविटी कैसे है ना. तो आई थिंक थेरेपी एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ थेरेपी आर नॉट ओनली फॉर क्लिनिकल पॉपुलेशन. They would work wonders for people who don't have any illness per se, but just want to navigate their lives better. Yeah. Understood.